बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आइए हम आपको आज पत्तोगी के उस कमेटी से मिलाते हैं जिन्होंने एक अनोखा काम किया नेकी का, जो कि आपके सामने है कि हसूले कब्रिस्तान कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई और फिर कुछ पैसे जमा करके रक्षा लिया। रक्षा लेने के बाद इन्होंने चंदा इकट्ठा करना शुरू किया, जिसके रुए रुआं शाह साहब हैं और उनसे हम बात करते हैं। जी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर, आपका नाम क्या है? पहले तो अपना नाम सैयद सजाद हुसैन शाह जी। अच्छा, ये हसूले कब्रिस्तान कमेटी का जो ख्याल है ये आपको कैसे आया? जी, साडा पत्तोकी दे विच कब्रिस्तान है, ठट्ठा कब्रिस्तान जी जी जिहड़ा तकरीबन असी बचपन तो सुनते आ रहे हैं कि जी उत्थे जगह खत्म हो चुकी है। जी तो मैं मेरी वालदा दी वफात हुई तो मैं उत्थे दफनाउण वास्ते गया तो मैं अपनी वालदा नूं आप कबर च उतारिया तो कबर का दाना इन्ना कुछ सी कि मैयत तो थल्ले जान लगे भी दिक्कत सी। जी तो फिर ये दिल च ख्याल आया कि साडे इत्थे ना लैला कब्रिस्तान जगह होनी चाहिए, ज़रूरी है। 12 वारी पहला भी बड़े दोस्त कोशिश कर चुके सी, लेकिन उन्हों का मनसूबा बेचारिਆਂ को नहीं कामयाब होया। लेकिन अलहमदुलिल्लाह असी ये मनसूबा शुरू किया तो अल्लाह के फजलो करम नाल जिहड़ा ना असी पाया तकमील के बिल्कुल करीब हाँ, अलहमदुलिल्लाह। शाह साहब, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾ ਏਕੜ ਖਰੀਦਿਆ ਉਹ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਕਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। 40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 ਕਰੋੜ ਤੇ 60 ਲੱਖ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਰੀਦਿਆ। 1 ਏਕੜ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਵਨ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਬੜੇ ਮੁਖਈਆ ਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਏਕੜ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2.25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਓਵਰਸੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਹ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤਾਵਨ ਬਿਲकुल ਕੀਤਾ? ਜੀ, ਸਾਡੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਜੀ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਉਰੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਪੱਤੋਕੀ ਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹਸੂਲ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਹਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਡੀ ਪੱਤੋਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਵਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਰਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਲੰਗ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ 4 ਜਾਂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਟੋਟਲ 4.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਛ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਲ ਵਕਤ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ 1000 ਰੁਪਇਆ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ 15,000 ਬੰਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੈਸੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਮਤ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹਸੂਲੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਏਗੀ। ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2.25 ਏਕੜ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 5-4 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ
ਤੇ 5 ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਸलन ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਜਾਨਵਰ अंदर इंटर ना हो सके। जी शाह साहब, यहाँ पे तदफीन का अमल शुरू हो चुका हुआ है? हाँ जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं पहला भी दसिया कि कट्ठे कब्रस्तान च ते जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी सी जी जी ते लिहाजा जिहड़ा ना असी एक साडे मुहल्लेदार ही ने जनाब मोहम्मद शफीक साहब, उन्हां दी कबर उत्थे खुदवाई करन गए ने ते थल्लों ना स्लैपां निकलियां ते वो एक दो थां तो एक दो जगह ते उन्होंने तदफीन की लेकिन ना वो नहीं हो सकी, कबर नहीं चली अगे। तो फिर उन्होंने सारा रबता किया तो असीं ठीक है असीं तैयार हाँ तो तुसीं इत्थे कबर बना लो। तो पहली कबर जी उन्होंने बनी है, फिर एक राणा लतीफ साहब ने उन्होंने एक कबर बनी, तो दूसरी पत्तोगी दा हीरो, असीं तुहानूं पत्तोगी दा हीरो ही कहांगे बिल्कुल। जी जी, पत्तोगी दा मान जनाब, पत्तोगी दा हीरो। हाँ जी, कि एक मामर शख्स औरत जी ना वो गटर च खुले बेर होल च गिरी, सोशल मीडिया ते बहुत पजीराई मिली है तो वो हर बंदा जानता है कि उत्थे उन्होंने जिहड़ा ना वो कबर दे विच गिर गई गटर दे विच ते उस हीरो ने अपनी जान जी ना उस औरत को कढ़न वास्ते पेश कर दी। उन्होंने थल्लों पार कर लैके आ रहा सी कि जिहड़ा ना वो वजन की वजह ना जिस तरीके नाल बेचारा उन्होंने वो गटर की नज़र हो गया, उन्हें अपनी जान दी। वो शहीद की कबर मलक काशिफ की कबर भी इत्थे ही बनी है जी। तो माशाअल्लाह अगे फिर अगर सिलसिला जारी है, कल भी एक छोटी जी कबर बनी बची दी। तो ये एक सदका जारी है, बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त अमल है। मैं ये ख्याल करता सी कि यार ये सदका जारी किवें बन जांदा। तो मैं कल वेख्या कि कल इत्थे बीबियां इत्थे कुरान पढ़दियां पईयां सी आके कबर ते जाहिर है जे वो कुरान पढ़ के अपनियां मय्यतां नूं बख्शदे ने, तो जिन्हां ने इस कार्य खैर च हिस्सा लिया तो अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, तो इंशाअल्लाह उन्हां नूं भी तो अजर मिलता होवेगा, तो ज़रूर मिलेगा। तो इस वास्ते दोबारा फिर यही अपील है कि 1000 रुपया कम अज़ कम हर शख्स सानूं देवे, ताकि जी ना असी 1.5 करोड़ जी साडे इस टाइम साडे ते एक कर्जा है वो असी अदा कर दईए। तो असी बाकी जो तरक्याती काम ने इत्थे रस्ते तो सोलंग लगने ने तो जो दीवारों के नाल सोलंग लगने ने और इंशाअल्लाह शजरकारी होनी है, बेहतरीन शजरकारी होनी है। तो जी ना उनके वास्ते इंतजामत असी फिर कर लाँगे थोड़े थोड़े आपे ही। तो बाकी सारे सारे दस जो ना एक कर्ज की अदायगी जी ना वो बहुत जरूरी है। कोई कितों का रहने वाला पत्तोगी का या उकाड़े शहर का या किसी भी जगह दा भी रहने वाला पाकिस्तानी अगे मुसलमान दे 1000 रुपया सिर्फ जो ना वो जरूर पेश करो। मेरा जायज़ कैश नंबर 0300 पूरा 42 22 153, ये मेरा जायज़ कैश नंबर है। तो तुसी बता दोबारा रिपीट कर लो 0300 पूरा 42 22 153 सैयद सजाद हुसैन शाह। तुसी 1000 भेज के मैनूं तलाह कर दिओ, इंशाअल्लाह इवें ही तरतीब दे नाल जिवें पैसे आएंगे असी बंदे काम करते जावांगे तो तुहाडा जिहड़ा फेसबुक के उत्ते तुहाडा अनाउंसमेंट कर देंगे कि इंशाअल्लाह ये शफाफ तरीका जिहड़ा कोई ज़्यादा देना चाहता है उहदे पाबंदी कोई नहीं, अल्लाह तआला ने दिता है तो तुसीं अपने दिते माल दे विचों सानूं दिओ। ओवरसीज़ पाकिस्तान नूं फिर सलाम है कि जिन्हां ने एडा वड्डा मनसूबा मुकम्मल करन लगे साडा साथ दिता, मज़ीद साडा साथ दिओ ताकि एक वसीओ अरीस जिहड़ा ना कब्रस्तान की जगह असी दे के आइंदा नस्ल नूं असी दे सकीए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर बंदे ने मरना है तो सानूं अपनी कबर का जिहड़ा ना वो इंतजाम करना। जी शाह साहब, अल्लाह ताला तुहानूं और तुहाडे जिन्ने भी साथी ने इन्हां नूं सब नूं अल्लाह ताला जज़ाए खैर देवे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। और मैं अपने इस यूट्यूब दे और जिहड़े दूसरे साडे पेजेस ने जिस ते भी असी वीडियो अपलोड करांगे उन्हां वालों रिक्वेस्ट करांगे कि जिन्ने लोग ने वो तुहाडे नाल राबता करन और इत्थे हर किस्म की शफाफियत उन्होंने मिलेगी। और जिन्ने पैसे देंगे इंशाअल्लाह ताला इस नेक काम ते ही लगनगे, क्योंकि नज़र आ रहा है कि जिस तरह लोगों ने इतबार किया है उन्होंने इतबार दे उत्ते पूरा उतरिया गया है। और सब नालों वड्डी गल है कि पत्तोगी दा मान, पत्तोगी दा हीरो जिन्हें एक मुअम्मर खातून नूं बचाते हुए अपनी जान कुर्बान की, वो इत्थे दफन है। ये बहुत बड़ा एजाज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्होंने और तमाम उन्होंने लोगों नूं जिन्हां ने इत्थे तावन किया उन्हां दी बख्शिश का जरिया बनाए। आमीन, बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये काशिफ जो अभी एक दिन पहले शहीद हुए हैं एक अम्मा जी को बचाते हुए गटर से, तो उनकी ये कब्र है यहाँ पे। और अल्लाह ताला इनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए और साथ में दीगर दूसरे मरहूम हैं इनकी कब्रें हैं
अल्लाह ताला तमाम मरहूमैन को जन्नतुल फिरदौस में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब फरमाए, आमीन। लीजिए जी, लास्ट में मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ये वाला बोर्ड लगाया गया था जब हसूल कब्रिस्तान कमेटी के आगाज़ हुआ। ये सोचा गया कि पुरानी मंडी पत्तों के लिए एक कब्रिस्तान होना चाहिए, तो मॉडल कब्रिस्तान कह लें आप इसको, कि जहाँ पे इतनी सारी सहूलियात दी गई आवाम को कि वो अगर यहाँ पे आना चाहें तो उनको रास्ता भी साफ मिलेगा और यहाँ पे कोई जानवर भी दाखिल नहीं होगा। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने है। ये नाम इसके ऊपर उन तमाम लोगों के दर्ज हैं जिन्होंने इस कमेटी का आगाज़ किया था। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, आमीन।